So, students, Ananya, can you please be on the line, Ananya? Yes, sir. Ananya, these are the things we discussed in the last class. So, did Yes, you sir. go through the Coulomb's law? Everything is clear to you, Ananya? Yes, sir, it's clear. Coulomb's law says कि force of interaction between 2 point charges is proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to square of the distance. If we are finding out the net force in vacuum, it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, Q2 by R square. And if we place in medium, तो force लगेगा 1 upon 4 pi epsilon Q1, Q2 by R square. What is epsilon here, Ananya? It is the permittivity of vacuum या Of free space. नहीं epsilon not होती है permittivity of vacuum or free space. What is epsilon? It is permittivity of medium. Of the medium. Yes. Are we comfortable in comparison of two forces? कि जो वैक्यूम में फोर्स लगेगा अपॉन मीडियम का फोर्स, दिस इज द रेशियो इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी. इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा अनन्या, एक डाउट है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी? What is the unit of relative permittivity? So the SI unit? Yes, unit I'm asking. Ki what is the unit of relative permittivity? Relative permittivity will have no unit, right? Yes, yes, yes. ये आप सबको बाकी को भी देखना है. अक्षिता सानवी. अक्षिता? Yes, sir. अक्षिता, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला दिया मैंने, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. तो दोनों परमिटिविटी का रेशियो कैंसिल हो जाएगा यूनिट वाइज. तो कैन आई से कि रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिटलेस? Yes, sir. So you just remember this line कि relative permittivity or dielectric constant, these are unitless or dimensionless parameters. Shreya, is it clear to you, Shreya? Yes, sir. और जो मीडियम में फोर्स लगता है श्रेया, that force is वैक्यूम में लग रहा फोर्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Any doubt in this formula also, Shreya? No, sir. Very important. अच्छा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे. Any doubt in the questions we discussed? Any doubt? So the last question I had one doubt. Yes, Ananya. What is the doubt in this question? In this question, where you have written 2kq capital Q small q by a square, that part I did not understand. Okay, okay. I'm just solving it roughly here. मैं एक बार आपको रिपीट करके बताता हूँ. अनन्या, Yes, this sir. was capital Q, this is also capital Q. पहले इस कैपिटल Q की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगा था. That was KQ square upon A square. Fine. Yes, sir. Due to this Q, force is along this direction. This is Yes, KQ KQ square upon square by A square. A square. Now resultant of these two will be along this direction, which is root 2 times KQ square by A square. Is it clear? Yes, sir. Now Ananya, इनको कट कर देते हैं क्योंकि resultant we have written. Now Okay. due to this Q, force will be along this direction itself. Yes, sir. Ananya, this diagonal is root 2a. Do you agree? Yes, sir. तो इसी में मैं ऐड कर देता हूँ KQ square upon root 2a का whole square will become 2a square. Do you agree? Yes. Now Ananya, on this charge जिसको मैं encircle कर रहा हूँ, there is a net repulsive force along this direction. Do you agree? Yes, sir. अनन्या, अब इस पर attractive force लगेगा along this direction. Yes. So this charge must be negative, which is kept at the center. Yes. Do you sir. agree? So due to this minus Q, can I write down the attractive forces K capital Q small q upon half of the diagonal का square, half of the diagonal. Okay. This distance is root 2a का half हो जाएगा a by root 2. जब मैं इसका square करूंगा, will I not get this 2 ऊपर numerator में? Yes, sir. I got it. Now this yellow circled force will be cancelled by this force in order to keep in equilibrium. Yes, Manvi Sarang, is it clear to you, Manvi? Yes, sir. So any further doubt in the questions we discussed in the last class, students? चलिए, अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए. You can see 2 questions on the screen. All of you can see? Yes, sir. So please solve question number 6 as well as 7 and send me the answer on chat box. First of all, send me the answer of question number 6.
Yes, Manvi has sent me the answer, and yes, Ananya. Ananya, any answer? Ananya? अच्छा चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ. I will solve this question. Question number 6. Shreya, can you help me out how to solve this question, Shreya? Shreya. Yes, sir. I was trying to do that. I don't know. अच्छा चलिए मैं I will talk to Ananya. Ananya, can you please be on the line? Ananya. Yes, sir. Ananya, how you are solving this question? So I drew the image and then I did it like. See, question number 6. There are two conducting spheres, identical हैं, very small, and they are having charges 40 microcoulomb and minus 20 microcoulomb, and they are kept at some distance. Now they are touched and kept at the same distance. ये touch का क्या फंडा है, Ananya? Can you please elaborate? So I think when they're touched, then the charge gets divided. Yes. Students, I am writing down question number 6, a very important fact related with 6th question. If two identical charged bodies, identical means जो dimensionally same हो, charged bodies are either touched or connected together. It means they are connected with a wire like, or connected together, their total charge gets equally distributed. Ananya, is this point clear or not? Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स बताइए. श्रेया, is this point clear? Yes, sir. श्रेया, now सबसे पहले आपको दिया गया था one body was having 40 microcoulomb charge and another one was having how much? Minus 20 microcoulomb charge, and let us say they are kept at distance r. Ananya, unlike charge हैं, they will attract each other. Do you agree? Yes, sir. अनन्या, जो फोर्स होगा इनके बीच में, दिस शुड बी इक्वल टू k q1 q2. जब हम चार्जेस लिखेंगे तो 40 इंटू आई हैव टू राइट डाउन ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट, तो माइनस साइन की देयर इज नो नीड, राइट डाउन डायरेक्टली 20. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. अपॉन आर स्क्वायर. इवन आपको यूनिट भी चेंज नहीं करनी, टेक इट इन माइक्रोकूलम बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो सिंपली. डू यू एग्री? Yes, sir. अब अनन्या आप मुझे बताइए, जब मैं इनको टच करूंगा, one is having 40 and one is minus 20, how much is total charge? Plus 20. Yes, sir. अनन्या, if it is plus 20 और इसको half of divide करूंगा, what will be the final charges after touching? 10 and 10. Yes, 10 and 10. So they are kept at same distance. So this charge is 10 microcoulomb and this is also plus 10 microcoulomb. Now they will repel each other. Do you agree? Yes, sir. अनन्या, अब जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, लेट अस से F2. कैन आई से K into Q1 Q2 is 10 into 10 upon R square? Yes, sir. Ananya, can we find out the ratio F1 by F2? Yes, sir. Will it not be equal to 8:1? Yes. That's why which option is correct here? A. Manvi Sarang. Manvi, is it clear to you or not? Manvi. Yes, sir. Clear. Any doubt, Akshita and Shreya? No, sir. No, sir. So basically, आपने इस question के through the thing you learned is charge is equally divided on both the bodies. That's why 40 and minus 20 का जो sum होगा, this is plus 20 and that will be equally divided. That's why 10 and 10 I have taken. I hope this must be clear to everyone. मैं इसका जैसा question एक और लूंगा, but first of all you should try question number 7.
Yes, Ananya, any answer of the next question? No, sir, I'm still doing it. Okay. Akshita Sanvi, any answer? Sir, I'm doing it. Yes, Shreya. Yes, sir. Shreya, can you explain? Sir, I'm trying to solve this. चलो थोड़ी हेल्प तो करो मेरी, कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे श्रेया? Shreya, can you please be on the line? Yes, sir. श्रेया देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं एक बार. 2 point charges are kept at a distance r in air, exert a force F on each other. So let us say these are the charges Q1 and Q2. And how much is the separation between them? It is r. तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है श्रेया. Yes, sir. How much is the force I should write down? Can I say K Q1 Q2 upon r square? Do you agree? Yes, sir. Now the same charges पहले तो रखे हुए थे एयर में. Now the same charges Q1 and Q2 are kept in a medium. और मीडियम में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ये 4F. Let us say हाँ this is जी. the force and this is the separation R between them. तो यार इस 4F को now this distance is sorry capital R. Just a minute. I will write down capital R. Now Shreya, this 4F is equal to how much? Can I write down K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या लिखूं? थोड़ा सा आप मेरी हेल्प करो. What should I write down here? R square. कैपिटल R स्क्वायर एक तो करूंगा और कुछ हाँ जी. मेरी तरफ. Anything which is left here? Anything which is left? Any one of you? Ananya, anything is left? कुछ चीज हमसे. So the Yes, dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब हम मीडियम में प्लेस करते हैं दो चार्जेस को, यू हैव टू यूज मीडियम में लग रहा फोर्स होता है वैक्यूम का फोर्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन कैपिटल के. देखिए मैं आपको लास्ट क्लास के नोट्स याद दिलाता हूँ. दिस इज द पॉइंट वी हैव मेड दिस फॉर्मूला कि मीडियम में जो फोर्स लगेगा वैक्यूम का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. श्रेया, नाउ इज इट क्लियर श्रेया? Yes, sir. So you have to divide with dielectric constant capital K. Let us say this is my second equation. This is equation number 2 and this was equation number 1. Can we divide first by second, Shreya? Yes, sir. तो एक बार इसको आप सॉल्व करके कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए. इफ फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, लेफ्ट साइड में वी आर लेफ्ट विद 1/4 और राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास? दैट शुड बी के capital R square upon what? Will it not be small r square? Yes, sir. तो एक बार आप सॉल्व करके निकालिए. कैपिटल K is given as 16 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो वी विल गेट कैपिटल R इक्वल टू व्हाट? क्या हमारा सी ऑप्शन आंसर आता है स्टूडेंट्स? एक बार चेक कीजिए प्लीज. कैपिटल R इक्वल टू R/H. यस मानवी सारंग? Yes, sir. If you place K की वैल्यू 16 for the 64, जब आप अंडर रूट निकालोगे you will get capital R is equal to R/H. Ananya, is it clear to you, Ananya? Yes, sir. Any doubt, Akshita Sanvi? No, sir. So please remember the formulas. These are very important. If you place the charges in vacuum or air, it is
is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square या k q1 q2 by r square. But if you place in a medium, then k q1 q2 by r square by dielectric constant upon capital K भी आपको करना होगा. Any doubt, Shreya, in this question? No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. फिर एक दो क्वेश्चन में अब आपसे करा के देखना चाहता हूँ. आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. Let there are two point charges, two identical point charges. Identical means charge भी same है and size भी same. Two identical point charges having same charge and same size and same size, A and B, kept at separation R. Let F1 is repulsive force between them. Now, another neutral particle C is touched with B and then kept at midpoint of A and B. Let the force experienced by B is F2. Find out F1 by F2. Just everybody read the question and try to understand whether the question is clear to them or not. First of all, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा जैसे अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले. Ananya, is the question clear to you? Yes, sir. Shreya, is the question clear to you? Sir, not exactly. Can you please explain it once? Shreya, my question is, let there are two small point charges A and B and they are kept at a distance R. Fine. Okay. Let they are having charges, same charge दे रखा है तो दोनों पर Q assume कर लूं. Do you agree? Okay, sir. And A and B, they are repelling each other. Suppose force experienced by B is F1 right now. So how much is F1? Tell me the direct formula. Can I say KQ square by R square? Yes, sir. So this is my first equation. Fine. Yes, sir. अब now what we have done. A तो as it is था. इसके आगे बस मैं explain करूंगा. Solve आप खुद करोगे. Now what we have done. B को as it is रखा हुआ था. A was having how much charge? Q? Yes, Shreya. Yes, sir. श्रेया, अब मैं C को B से टच करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई प्लेस C एट द मिड पॉइंट. C को फिर मैंने यहां रखा है. अब आप मुझे बताओ C और B के पास कितना कितना चार्ज होगा. If I touch C with B, then how much will be the final charge on C and B separately? अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है कुछ. Can anybody else tell me? So Q by 2.
yes. अगर C न्यूट्रल था, श्रेया प्लीज बी ऑन द लाइन अगेन. Yes, sir. श्रेया C वाज न्यूट्रल. न्यूट्रल को अगर मैं B से टच करता हूँ और B के पास देखो कितना चार्ज है, Q है. डू यू एग्री? Yes, sir. So will it not be equally divided on the two? This is Q by 2 and this will also be Q by 2. Do you Okay. agree or not? Yes, sir. And how much is A से C तक का distance? Is it not R by हाफ 2? हो जाएगा. This is also R by 2. चार्ज और डिस्टेंस दोनों ही हाफ हो गया. नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार पूरा. नाउ अनन्या, फोर्स एक्सपीरियंस बाय बी जो इन्होंने दिया है, दैट इज F2 लेट अस से. तो F2 में दोनों फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है, जो A से एक्सपीरियंस होगा एज वेल एज जो C से एक्सपीरियंस होगा. कहना इसे जो मेरा नेट F2 आएगा B पर, ड्यू टू A हाउ मच, K Q1 Q2 हो जाएगा K Q into Q by 2. डू यू एग्री? Yes, sir. अपॉन टोटल डिस्टेंस इज R, तो R स्क्वायर प्लस जो C की वजह से लगेगा ड्यू टू C, कहना इसे K Q by 2 हो जाएगा K Q square by 4. डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. अपॉन C से जल्दी से मुझे ये वाला सेपरेशन बताओ कितना है, R by 2. Yes, sir. R by 2 अनन्या, square. जब R by 2 होल स्क्वायर, 4 से 4 will get cancelled. Yes, sir. Ananya, I can see this force is 3 by 2 K Q square by R square. Do you agree or not? Yes, sir. If I divide equation number 1 with 2, I will get the answer F1 by F2. So will F1 by F2 not be equal to 2 by 3? Yes, tell me whether it is cleared or not. Yes, sir. Shreya, is it clear to you? Yes, sir. Akshita Sanvi and Manvi Sarang, any doubt? No, sir. तो क्लियर है. तो देखो, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है व्हेन द चार्ज गेट्स इक्वली डिवाइडेड. आइडेंटिकल साइज की दो बॉडीज दे रखी होती हैं, चार्ज गेट्स इक्वली डिवाइडेड. आई होप दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एनी डाउट अनन्या? No, sir. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? Yes, sir. तो पहले आप मुझे ये बताइए कंफर्टेबली वेदर वी आर नाउ कंफर्टेबल इन कूलम्स लॉ और नॉट. जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, टेल मी फास्ट. Yes, sir. चलिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन बहुत सिंपल दूंगा अभी आपको, जिससे आपका स्कूल लेवल पहले बहुत अच्छे से क्लियर हो. ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं अभी थोड़ा रुक के कराता हूं आपसे. फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो श्रेया से बात करते हैं. श्रेया प्लीज बी ऑन द लाइन. Yes, sir. श्रेया, आपके पास एक चार्ज ओरली, आई एम आस्किंग यू, एक चार्ज आपको दिया जाता है, लेट अस से कुछ भी एज्यूम कर लो 20 कूलम्स. ठीक है ना? हाँ जी. हाँ जी. तो उसको आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, 20 कूलम के चार्ज को. हाउ यू कैन डिवाइड सो दैट उनके बीच में लग रहा फोर्स मैक्सिमम हो जाए? यू गॉट माई पॉइंट ना? Yes, sir. तो we'll divide it by 2. चलो मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म दे देता हूं जो मैंने आपसे ओरली पूछा है. इट चार्ज 20 कूलम्स has to be divided in 2 parts. How this division has to be done? Has to be done so that force between them becomes maximum. This is my question and I'm giving you the options also. Option A, equally divide कर दें अनन्या, 10 कूलम 10 कूलम्स. Ananya, second option is 5 coulomb 15 coulomb. Third option is let us say 20 by 3, and the another option is कितना ले ले हम यहाँ पर, total is 40, then 70 by 3, 70 20 90, no,
this should be 100 and this is 20 बनाना है ना. This is 20 by 3 and 40 by 3 and last option is none of this. चलिए Akshita, my question is clear to you, Akshita? Yes, sir. Akshita, can you help me out, please? How this division has to be done so that force between them become maximum? Manvi has sent me the correct answer. Akshita, you sent the answer of this question? No, sir. That was the previous question. Okay. So इस क्वेश्चन में कौन हेल्प करेगा मेरी? अनन्या. Yes, sir. Ananya, how this division has to be done? So I'm not sure of this. I think it will be B. B. Okay. B. And Shreya is saying A. Manvi is also saying A. Shreya, how A option is the right answer? Can you help me? Sir, because when we divide it by 2 and solve it, so this will divide it into 2 equal halves. And So that is the possible, I think so. you think so, but what is the reason? Manvi Sarang, can you help me? Manvi. सर दोनों में इक्वल चार्ज होगा तो फिर मैक्सिमम होगी शायद. नहीं शायद नहीं, सच में मैक्सिमम होगी. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. देखो यार, एक सिंपल सी बात करते हैं. अनन्या, प्लीज बी ऑन द लाइन. अनन्या. Yes, sir. अनन्या, मस्कट में वो कौन सी करेंसी चलती है? Real. दिरहम तो रियाल. अच्छा चलो रियाल में ही बात करती हैं. 100 रियाल है, लेट अस से यू हैव. ठीक है ना ठीक है. अनन्या? हाँ जी. Ananya, you have to divide 100 real in two parts, this one and this one, so that product of these two, मान लो A और B में divide किया, so that product of two become maximum. You got my point ना? Yes, sir. अब मैं चलो 100 तो बड़ा नंबर हो गया, एक काम करते हैं 10 ले लेते हैं. तो अनन्या, if I equally dividing, then 5 into 5, do you agree? 25. Yes, sir. That product will be 25. अब आप 10 को किसी भी और फॉर्म में डिवाइड कर लो, like 6 and 4, their product will be less than 25. Do you agree? Yes, कुछ भी sir. कर लो जो अच्छा लगे आपको, like 7 and 3, this will be 21. तो मेरे पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, that is equal to K Q1 Q2 by R square. So basically we are dealing with their product of two charges. Do you Yes, agree sir. or not? Yes, sir. तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, देन इट विल बी ओनली मैक्सिमम जब वो इक्वली डिवाइड होगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 का. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Okay. अनन्या, यू टेक एनी अदर एग्जांपल, मतलब 5 और 5 को छोड़ के एनी अदर कॉम्बिनेशन आपको जो अच्छा लगे, लाइक 9 and 1, वो भी मिक्स 10 ही होता है, लेकिन 9 into 1 9 है, बहुत छोटा है काफी. डू यू एग्री ना? Yes, sir. सो कोई भी नंबर दो पार्ट में डिवाइड करना है सो दैट देयर प्रोडक्ट बिकम मैक्सिमम, वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स. Okay, sir. Shreya, is it clear to you, Shreya, what I said? Yes, sir. तो प्लीज रिमेम्बर दिस पॉइंट. आई एम राइटिंग डाउन, नोट करके मैं लिखूंगा. ये आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो याद रखने हैं. इफ ए चार्ज इज equally divided in two parts, then the force between these two parts become maximum. तो हमेशा आप ऐसे डिवाइड करना इक्वली. आई होप अक्षिता दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. Yes, sir. So that's why I have divided 20 into two equal parts. I mean 10 into 10. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं which you should remember कैसे इनको करना होगा. तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए अभी तक, वो मैं एक बार रिपीट करता हूँ. एक तो मैंने आपको पॉइंट बताया कि इक्वली डिवाइड करेंगे देन फोर्स विल बी मैक्सिमम. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी डिस्कस टुडे विद द हेल्प ऑफ टू क्वेश्चंस. Whenever you are touching one sphere with another one,
charge gets equally divided on the two. जो sum of charge होगा that will get equally divided. I hope that point was also clear to all of you. Yes, any doubt students बताइए एक बार मुझे. मानवी, any नो doubt? सर। Fine. तो कुछ और क्वेश्चंस किए जाएं अभी आप इसके आगे. I think one question is very good जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है. मैं थोड़ा जूम करता हूं इसे. Now it is readable, please. This is a very good question. मतलब बहुत सिंपल है बट आपको अच्छा लगेगा ये. Yes, Shreya, question is clear to you, Shreya? Yes, sir. Ananya, should I discuss this question? Ananya? Sir, I am doing it. Just मैं एक बार explain कर देता हूँ what I am asking. बाकी तो आप ही try करेंगे. The thing is, there is one charge particle which is, let us say, 4q, and there is another charge particle which is q. How much is the separation between them? D. D. And we are asked, D is the separation between them. Find out the location. तीन चीजें पूछी है. Find out the location, nature, and magnitude of third charge to be kept so that entire system is in equilibrium. I think I told you in the last class what is the meaning of equilibrium. Yes, sir. बताया था ना? What is equilibrium, Ananya? So the net force of the whole system should be 0. Yes. Now, when the net force on the whole system becomes 0, that is the equilibrium. I hope, Shreya, you got the point. Shreya. Yes, sir. तो श्रेया मुझे थोड़ा सा टेंटेटिवली मेरी हेल्प करना कि मैं थर्ड चार्ज पॉजिटिव लेना चाहिए और शुड इट बी नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको रफली बताना कहाँ प्लेस करूं जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए पूरे सिस्टम का. यू गॉट माय पॉइंट ना? Yes, sir. फिर वो सेंटर में, I guess. अब ये सब मैं इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा. थोड़ा सा सोचिए पहले आप सब लोग. मानवी एंड अक्षिता आल्सो. थर्ड चार्ज, पहले आप इस पे सोचो कि थर्ड चार्ज शुड इट बी पॉजिटिव और शुड इट बी नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ जी अक्षिता, क्या कहते हैं? थर्ड चार्ज शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव. नेगेटिव. पॉजिटिव में नहीं हो पाएगा. जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ. सर अभी रिपल्सिव फोर्स लग रही है तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी अगर नेगेटिव होगा तो. अच्छा, मेरा डाउट ये है अक्षिता, मैं मतलब क्यू के राइट में रखूं, मतलब ब्लू लाइन पे रखूं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, येलो लाइन पर रखूं या पिंक लाइन पर रखूं? थोड़ा मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही. जो ब्लू लाइन दिखाई है थोड़ा डार्क करूं क्या ब्लू? नहीं सर, विजिबल है. विजिबल है. तो यार ये क्लियर करो, मैं बीच में रखूं 4q और q के येलो लाइन पर, और शुड इट बी केप्ट ऑन ब्लू लाइन, आई मीन राइट ऑफ q, या शुड बी केप्ट ऑन पिंक लाइन व्हिच इज लेफ्ट ऑफ 4q? Sir, right of Q पे. राइट ऑफ q पर. अच्छा चलो, मैं एक एक पहले ना मैं रीजन को थोड़ा सा यहाँ पर हटाना चाहता हूँ. मैं यहाँ रख ही नहीं सकता. चलो अक्षिता से ही पहले बात करते हैं. अक्षिता प्लीज बी ऑन द लाइन. यस सर. अक्षिता, अगर मैं ब्लू लाइन पर रखता हूं ना, लेट इट बी पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो यार ये दोनों से Q से भी और 4Q से भी रिपेल हो जाएगा. इज इट पॉसिबल क्या मैं इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाऊं? नो अक्षिता, सर. आई कैनॉट कीप इट हियर. अगर माइनस होगा तो ये दोनों से अट्रैक्ट हो जाएगा. डू यू एग्री? यस सर.
तो ये पॉसिबिलिटी मेरे पास से खत्म हो जाती है. Yes, Is it sir. clear to everyone in the class, whether it is Shreya, Yes, Ananya sir. और मानवी? तो मैं गलती से भी इसको राइट में नहीं रख सकता. अनन्या, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. अब अनन्या, पिंक लाइन का ऑप्शन भी मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से. आई कैन नॉट कीप इट हियर बिकॉज इफ इट इज पॉजिटिव लेटर से तो ये दोनों से रिपेल हो जाएगा, 4Q से भी Q से. अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल. डू यू एग्री? Yes, sir. अनन्या, लास्ट ऑप्शन आई एम लेफ्ट विथ कि कहीं ना कहीं मुझे बीच में रखना है. सपोज इट इज केप्ट हियर, लेट इट बी पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए, तो विल इट नॉट बी रिपेल्ड बाय 4Q? Yes, sir. और स्मॉल Q से ये लेफ्ट में रिपेल होगा, तो कैंसलेशन की पॉसिबिलिटी है फोर्सेस की. डू Yes, यू sir. एग्री? तो अनन्या, ओनली ऑप्शन इज मुझे बीच में ही रखना पड़ेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? Yes, sir. मानवी, सारंग, एनी डाउट? Yes, sir. तो मानवी, एक बात तो मुझे कंफर्म हो गई है कि थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द टू. अब मानवी, मुझे ये क्लियर करो, शुड इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव होना चाहिए. अच्छा, क्यों होना चाहिए? थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी चाहिए. सर जिससे वो बैलेंस हो जाए. चलो मैं लिख भी देता हूँ, शुड बी नेगेटिव. मैं लिख ही रहा हूँ. आई एग्री विद योर पॉइंट. शुड बी नेगेटिव एंड इट मस्ट बी केप्ट somewhere between, I will explain why negative, somewhere between 4Q and Q. अब why it should be negative, just discuss. श्रेया, ये तो समझ में आ गया ना कि बीच में रखना है? श्रेया, Yes, sir. now the point is why this charge should be negative. देखिए, अगर मुझे सिर्फ, मैं आपको नीचे रफली एक्सप्लेन करता हूं. दिस इज 4Q, दिस इज Q. मानवी, प्लीज बी ऑन द लाइन. मानवी, आपसे डिस्कस Yes, करूंगा. sir. मानवी, अगर मुझे कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम देखना है तो यार ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, क्योंकि दोनों sir. तरफ से रिपल्सिव लगेगा तो कैंसिल होगा. और अगर ये नेगेटिव है तो दोनों तरफ से अट्रैक्टिव लग के भी कैंसिल हो सकता है. इज इट Yes, क्लियर sir. ना? अब मैं नेगेटिव में ही क्यों प्रिफर कर रहा हूँ? वाई नेगेटिव साइन? क्योंकि बाकी दोनों पॉजिटिव हाँ, हैं. बिल्कुल सही बात. Q का इक्विलिब्रियम लेटर से देखते हैं तो ये जो स्मॉल Q है, दिस विल बी रिपेल्ड बाय 4Q. इसकी वजह से Yes, रिपेल sir. होगा. और अगर ये नेगेटिव लेता हूं बीच वाला चार्ज, तभी तो अट्रैक्ट हो सकता है. इज इट क्लियर टू अनन्या, अक्षिता एंड श्रेया? Yes, sir. तो जो बीच में चार्ज रखोगे स्टूडेंट, दैट मस्ट बी नेगेटिव. अलग से मैं कलरफुल यहाँ माइनस में दिखाऊंगा, माइनस लेना है मुझे. आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू अनन्या एज वेल. Yes, sir. तो अनन्या, एक बात तो मिल गई कि जो कैपिटल Q रखा है बीच में, दैट शुड बी नेगेटिव, और उसकी एग्जैक्ट प्लेस मुझे निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है. तो मैं कह सकता हूं कि लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x. अनन्या, सो हाउ Yes, मच sir. विल बी दिस डिस्टेंस? D minus d X. माइनस x. तो एक काम करते हैं अनन्या, जो कैपिटल Q बीच में रखा है उसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करते हैं. लेट अस से 4Q से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है F1 एंड ड्यू टू Q फोर्स अट्रैक्टिव इज F2. कहना इसे F1 F2 सेम होने चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, Yes, sir. तभी तो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगा. Yes, sir. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस Q चार्ज. इज इट क्लियर टू यू, अक्षिता, सानवी? Yes, sir. अक्षिता, मैं लिखूंगा F1 मस्ट बी कैंसल्ड बाय F2. तो जल्दी से मुझे F1 का फॉर्मूला बताओ. विल यू नॉट से K 4Q इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर. Yes, sir. जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं फोर्स का तो माइनस साइन नहीं लगाते फोर्स के फॉर्मूले में. एंड जो F2 लगेगा ड्यू टू स्मॉल Q, दैट विल बी K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन हाउ मच, अक्षिता? D D minus minus X X square whole square. ओके, तो K, Q एंड कैपिटल Q ऑल गेट कैंसिल्ड. तो कहना इससे अक्षिता 4 इंटू D माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. डू यू एग्री? Yes, sir. तो एक बार अक्षिता इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू जल्दी निकाल के बताओ कितनी आएगी. हाउ मच विल इट बी?
Please solve all the students. What is the value of x in terms of d? Concept wise, is it clear to everyone? Shreya, you tell me please. Yes, sir. Shreya, solve this equation quadratic and give me the value of x. I think it will be 2d by 3. एक बार solve कीजिए please. Yes, it will be 2d by 3. दोनों तरफ स्क्वायर रूट है ना, तो मैं बेटर है ऐसे कर देता हूँ, 2 इंटू स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, d minus x equal to x. So students, you will clearly see x equal to 2d by 3. Akshita, is it clear to you? Distance आ गया. Yes, sir. This is one answer. Position निकाल दी मैंने आपको. And nature, I have already said कि charge should be negative. This was one answer. Nature. अब last में निकालना है magnitude also. Akshita. Akshita, please be on the line. Yes, sir. अक्षिता, अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना किसी भी एक चार्ज के आइदर स्मॉल क्यू और 4q इनका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करते हैं. स्मॉल क्यू पर क्या माइनस कैपिटल क्यू का एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? डू यू एग्री? Yes, sir. लेट F3. और एक 4q का रिपल्सिव भी लगेगा विच इज F4. डू यू एग्री? Yes, sir. तो अब मेरा मैग्नीट्यूड पार्ट आ रहा है लास्ट आंसर. सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू, जल्दी से बताओ F3 should it not be equal to F4? Yes, sir. How much is F3? F3 था माइनस क्यू का अट्रैक्टिव फोर्स, तो K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन, बच्चे ये डिस्टेंस जो D माइनस एक्स दिख रहा है, Yes, sir. x है 2D by 3, तो D माइनस एक्स हाउ मच? D माइनस 2D by 3 is D by 3. Yes, sir. तो D by 3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा ऊपर. डू यू एग्री? Yes, sir. एंड इक्वल टू करना है मुझे F4. जो F4 आएगा, F4 किसका फोर्स है बच्चे? 4Q. 4q का. तो कैन आई से K 4q स्मॉल q अपॉन टोटल 4q से डिस्टेंस तो d ही था अपॉन d स्क्वायर. D डू यू square. एग्री? Yes, sir. d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, k से k गेट कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q. सो फाइनली कैपिटल Q इज नॉट इक्वल टू 4q by 9. यस अक्षिता. Yes, sir. और माइनस आप अलग से लगा दो बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि चार्ज शुड बी नेगेटिव. डू यू एग्री? Yes, sir. तो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें आपको पूरा आइडिया लगता है कि हाउ टू ब्रिंग द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. प्लीज एवरीबडी शुड सी द क्वेश्चन केयरफुली एंड जस्ट लेट मी नो कहीं आपको अगर डाउट आता है तो. एनीवन? श्रेया? No, sir, no doubt. नहीं, अभी है, वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं था. सर एक बार मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ फिर फैंसी. यू जस्ट चेक इट आउट. देखो, सबसे पहले ना सीक्वेंस को समझना होगा. कोई भी नया क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है तो फर्स्ट वी हैव टू सी वेयर द चार्ज शुड बी केप्ट. सबसे पहले ये टेंटेटिव आइडिया लेना जरूरी है. वेदर यू हैव टू कीप ऑन द लाइक ब्लू लाइन, पिंक लाइन मैंने बनाई, फिर बीच में देखा तो व्हाइट इज केप्ट इन द मिडल. सबसे पहले ये क्लैरिटी लेनी जरूरी है. अनन्या, सीक्वेंस में बात करता हूँ. आर वी कंफर्टेबल व्हाई दिस चार्ज हैज बीन केप्ट इन द मिडल फर्स्ट ऑफ ऑल? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट उठता है व्हाई दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव. आर वी कंफर्टेबल? Yes, sir. अब जब नेगेटिव और एक टेंटेटिव पोजीशन मिलती है तो आपको इक्वेशंस बनानी है. जस्ट मेक इट कि हाउ दिस चार्ज एट द सेंटर इज इन इक्विलिब्रियम. सेंटर नहीं, मतलब मिडल ऑफ द टू इज इन इक्विलिब्रियम. और फिर एक इक्वेशन बनाओ हाउ द अनदर चार्ज एट द कॉर्नर, वेदर इट इज 4q या आप q ले लेते, हाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम. देन यू हैव टू मेक टू इक्वेशंस एंड देन सॉल्व अकॉर्डिंगली. मानवी सारंग, आप बताइए. मानवी, तो ये F3 और F4 का बताना एक बार. कौन सा वाला? F3 लास्ट F4? वाला किया है.
यस सर। अच्छा, आप मुझे बताओ F3 जो फोर्स है वो किसकी वजह से किस पर लग रहा है, अगर मैं पूछूं? वो माइनस क्यू की वजह से क्यू पे लगा। यस, तो F3 बच्चे मैं यहाँ रफली लिख के बताता हूँ, मैं लिखता K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ये वाला डिस्टेंस होगा ना D माइनस एक्स, डी माइनस एक्स दिस वन जस्ट, तो D माइनस एक्स में x है 2D/3, तो हाउ मच इज D माइनस एक्स? D माइनस 2D/3, तो D/3 आएगा, यस तो सर। मानवीय जाएगा 9 D, समझ गए ना, D/3 का यस स्क्वायर। सर। डू यू एग्री? अच्छा जल्दी से मुझे बताओ F4 किसका फोर्स है? F4 है F4 स्मॉल क्यू पर 4Q की वजह से, तो आप यस लिखोगी सर। K 4Q अपॉन 4Q और Q के बीच का डिस्टेंस है D, तो D स्क्वायर। यस सर। तो F3 और F4 जब इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज तभी तो स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में आएगा मानवी। डू यू एग्री? यस सर, क्लियर। तो स्टूडेंट दिस इज द वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अनन्या, एनी डाउट अनन्या? No, sir, it's clear now. स्टूडेंट देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ आपको। आई होप काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं, अब मैं इसको स्लाइटली थोड़ा बदल देता है इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। थोड़ा सोचिए, अब मैं इसको मतलब पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट आई वांट कि यू शुड थिंक। सेम क्वेश्चन है एज इट इज। श्रेया प्लीज बी ऑन द लाइन। Yes, sir. श्रेया दिस इज 4Q और अब मैंने इस वाले चार्ज को नेगेटिव कर दिया है, ठीक है ना? Okay. इन द लास्ट क्वेश्चन इट वाज पॉजिटिव एंड दिस सेपरेशन बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है सब कुछ डी। सेम रिपीट करूंगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, फाइंड आउट नेचर कॉमा मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन of third charge to be kept so that entire system comes in equilibrium. Comes in equilibrium. My question is clear, students? एक बार बताइए देखकर। Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ मैं कहाँ चेंज करूंगा इसमें, थोड़ा सा मुझे ना पहले टेंटेटिव पोजीशन के बारे में आइडिया आप लोगों से लेना है। अब बीच में रखूं या -Q के राइट में और 4Q के लेफ्ट में? सर अगर हम उसको नेगेटिव लेके -Q के राइट में रखें फिर? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। अच्छा मिड में रख सकते हैं कहीं? आई एम जस्ट आस्किंग मिड में रखूं या नहीं, जैसे प्रीवियस में रखा था? पहले मेरा ये डाउट है श्रेया, कैन आई कीप द थर्ड चार्ज समवेयर इन द मिड ऑफ 4Q एंड -Q? सर मिड में नहीं रख सकते हैं आई गेस। मिड में, एग्जैक्टली मिड में नहीं रख सकते स्टूडेंट। अब देखो क्यों नहीं रख सकते, आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स। जैसे श्रेया ने कहा कि अगर मिड में रख दो, लेट इट बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो 4Q से तो रिपेल हो जाएगा और -Q वाले से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो फोर्सेस का कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. अक्षिता, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। और अक्षिता अगर मैं माइनस ले लेता सपोज, तो ये फिर 4Q से अट्रैक्ट हो जाता और माइनस वाले से रिपेल हो जाता, मतलब फोर्सेस का कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। यस सर। अनन्या, Yes, sir. तो अनन्या आई कैन नॉट कीप द थर्ड चार्ज समवेयर बिटवीन द टू। अब मेरे पास चॉइसेस क्या हैं? आइदर आई कैन कीप इट हियर और आई कैन कीप इट हियर। अब आप मुझे बताइए वेदर पोजीशन ए इज करेक्ट और पोजीशन बी इज करेक्ट। मुझे थोड़ा डाउट है, बाकी तो आप सॉल्व करना है इसको होमवर्क में आगे। मुझे बस इतना बता दो, डू यू एग्री कि ए पर रखना इज मोर एप्रोप्रिएट या बी पर?
तो ए पे हाउ ए पर? सर, क्योंकि दूसरी साइड अगर हम माइनस रख देंगे तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा। वैसे मानवी मैं बताऊं, मैं बी पर रखूंगा। ओके मानवी सर। सर वो ए पर नहीं attractive रखूं। नहीं, मैं रीजन है बहुत वैलिड। थोड़ा सोचिए आप 1 मिनट के लिए। मैं आंसर बता रहा हूं, मैं बी पर रखूंगा। अब वाई बी पर रखूंगा ये आप सोचो। ए पर रखना इक्विलिब्रियम विल नॉट बी पॉसिबल। चलो मैं एक बार अक्षिता से बात करता हूँ। अक्षिता प्लीज बी ऑन द लाइन। अक्षिता, यस सर। अक्षिता ए पर हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो ही नहीं सकता। वाई? देखो, अगर सपोज मैं प्लस ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज 4q से रिपेल होगा। डू यू एग्री? यस सर। लेट फोर्स लगेगा F1, और माइनस q से क्या होगा? अट्रैक्ट। Attract. Let force is F2. Both the forces are in opposite direction. Do you agree? यस सर। But हमें लग रहा है forces opposite है, they will cancel out each other. But I can take the guarantee कि यहाँ force F1 कुछ भी कर लो F2 से बहुत बड़ा है। They cannot cancel out each other. Reason, ये F1 किसकी वजह से force है अक्षिता? 4q। 4q। अब आप मुझे एक बात बताओ, 4q मैग्नीट्यूड वाइज माइनस वाले q का 4 टाइम्स है। डू यू एग्री? यस सर। और ऊपर से डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। आप अगर ये डिस्टेंस देखती हो तो दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, जो बहुत दूर बैठा है। डू यू एग्री? यस सर। एक तो 4q मैग्नीट्यूड वाइज स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से डिस्टेंस आप 4q के क्लोज ले रहे हैं, तो 4q की वजह से जो F1 आएगा रिपल्सिव, दैट विल बी मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू F2। ये बात आराम से पूरी क्लास सोचे कि आपको समझ में आई मैंने क्या कहा। श्रेया, मानवी एंड अनन्या, यस सर। F1 इतना स्ट्रॉन्ग है F2 से, दे कैनॉट कैंसिल आउट ईच अदर। श्रेया, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सर एक बार ही फिर से बता दो, इट्स नॉट दैट क्लियर। इट्स नॉट दैट क्लियर। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। श्रेया, जब फोर्सेस लगते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना भी तो जरूरी है अपोजिट डायरेक्शन में, देन ओनली दे विल कैंसिल ईच अदर। डू यू एग्री? यस सर। श्रेया ये बताओ, मैंने कैपिटल क्यू लेफ्ट में रखा है, जैसे मैं रब करके एक बार ना दोबारा बना रहा हूँ डायग्राम। देखिए ये क्यू रखा है कैपिटल में 4q के लेफ्ट में, तो 4q की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा F1। डू यू एग्री? यस सर। And due to minus q there will be one attractive force which is F2. Do you agree? यस सर। अब ये बताओ 4q के बहुत क्लोज नहीं है ये डिस्टेंस एज कंपेयर टू माइनस q। ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है जो मैं बना रहा हूं सामने। डू यू एग्री? हाँ जी। अब ये बताओ 4q मैग्नीट्यूड वाइज q से माइनस q के मॉड से 4 टाइम्स नहीं है एक तरीके से। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। एक तो चार्ज स्ट्रॉन्ग है 4q, ऊपर से डिस्टेंस भी छोटा है उसका कैपिटल Q से, तो क्या 4q का रिपल्सिव फोर्स जिसको मैंने F1 नाम दिया है, will it not be much stronger as compared to F2? श्रेया, यस सर। तो F1 यहाँ F2 से इतना ग्रेटर है कि they cannot cancel out each other in terms of magnitude. Do you agree or not? यस सर। तो I am writing down here कि F1 is much stronger than F2. तो I cannot keep the third charge left of 4q. Is it clear to everyone or not? यस सर। Yes, sir. तो यहां बस मैं इतनी लाइन अभी लिखूंगा कि here the third charge अभी कैसा होना चाहिए मैं ये भी डिस्कस नहीं कर रहा। थर्ड चार्ज should be kept right of minus q, यानी कि पोजीशन बी पर रखूंगा। अब इसको आप एज ए होमवर्क आगे लो कि एग्जैक्टली कहाँ रखेंगे, नेचर वाइज शुड इट बी प्लस और माइनस, और कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जस्ट लेट इट बी योर होमवर्क। इसको आप सॉल्व कीजिए, प्लस 1 असाइनमेंट आई विल शेयर विद यू इन नेक्स्ट 1 or 2 days। ठीक है ना?
Okay, sir. अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन का तो मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसको एज अ होमवर्क लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, आपकी नेक्स्ट क्लास, थोड़े डेज मुझे फाइनल करने हैं आपके। आई थिंक एक तो ये दिन आज का बहुत सही है, वन कुड बी लाइक ट्यूसडे, एक तो हम ये फिक्स कर सकते हैं, वन वाज लाइक सैटरडे, और एक दिन मैं आपसे और फिक्स करूंगा। व्हाट अबाउट स्टूडेंट, डू यू से ऑन थर्सडे? So Thursday, what time? थर्सडे इट कुड बी लाइक 3:30, थोड़ा जल्दी हो सकता है पॉसिबिलिटी। Yes, sir. Okay. व्हाट अबाउट अदर्स, मानवी, अक्षिता एंड श्रेया? Yes, sir. कैन वी हैव क्लास ऑन थर्सडे एट 3:30? श्रेया? Sir, I'm having my chemistry class at 4:30. तो 4:30 है ना, मैं 3:30 से 4:30 है फ्री कर दूंगा। नहीं 4 या 4:30 होती है तो अभी देन confirm- मैं इसको 3 to 4 भी कर सकता हूँ, और बताओ। ठीक है सर 3 to 4 will do. 3 to 4 ना, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे एंड आई विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? Okay sir. चलिए, ओके स्टूडेंट्स, सो विल मीट ऑन थर्सडे देन। ओके, ऑलराइट, Thank you, sir. ओके बच्चों।